اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسی دکھ کی اسٹوری دکھا رہا ہوں جو ایک حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی دو اسٹوری، ایک ٹرو اسٹوری میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اس گجر نالے کے اوپر جو صدمے سے جو ہمارے والدین، ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ، وہ اس گجر نالے کے اوپر مکان ٹوٹنے کی وجہ سے ہمیں بے سہارا کر کے چھوڑ کے چلے جا کے اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو اپنے پڑوس میں یہاں پہ ایک وہ فوتگی دکھا رہا ہوں جو ایک مہینہ سے ہماری والدہ کی جگہ پہ تھیں، اور وہ محترمہ صرف یہ سننے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں کہ ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ان کا وہ گھر جو اپنا جمع پونجی سے انہوں نے بنایا تھا، اپنا انہوں نے زیور بیچا تھا، اور انہوں نے جتنا بھی اپنا جمع کیا ہوا پیسہ تھا وہ اس گھر کے اوپر لگایا تھا۔ لیکن یہ بھی یہاں پہ میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ وہ گھر بغیر لیز کے نہیں تھا، اس کی لیز شدہ گھر تھا، اور وہ لیز اتھرائز تھی باقاعدہ کورٹ، ٹربیونل کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کورٹ کے اوپر اسٹے دیے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو لیز ہے وہ لیز بینک سے لون بھی لیا گیا تھا۔ اگر وہ لیز فیک ہوتی یا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو نہ سندھ ہائی کورٹ اسٹے دیتا، نہ ٹربیونل اسٹے دیتا، اور نہ ہی کوئی بینک لون دیتی۔ لیکن یہ ظلم کی داستان ایک حقیقت ہے۔ ایک چھوٹے سے کیمرے کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں ان حکمران اور ان ظالم صفت جو حکمران ہیں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقتیں دیکھیں آپ کہ کس طرح کی حقیقتیں ہیں۔ اور یہ دوسرا نہیں، یہ تیسرا واقعہ اور ریئل واقعہ میں دکھا رہا ہوں۔ اس طرح تو سینکڑوں فوتگیاں ہوئی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں ہوئی ہیں، جہاں سے گجر نالہ 0 پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے اپنے آنسو ٹپکاتے ہوئے اور اپنے آنسو نکالتے ہوئے اور اس جہان فانی سے چلے گئے۔ لیکن وہ دکھ اور درد جیسے آج یہ بے سہارا کھڑے ہوئے ہیں، کیوں ان کے اوپر ایک ماں کا سایہ، اور کسی کے اوپر جو نا مامی کا سایہ، کسی کے تائی کا سایہ، کسی کی چچی تھی، یعنی کہ ہر رشتہ چھوڑ کے اس جہان فانی سے وہ چلی گئیں۔ وہ تو اس ظالمانہ نظام کے دکھ سے چلی گئیں، لیکن ان بیچاروں کو بے سہارا چھوڑ گئی ہیں۔ تو میں آپ کو سامنے ان کے اپنی زبانی دکھانے لگا ہوں، اور سب سے پہلے میں ان کے جو بیٹے ہیں جو ان کو سنبھالتے تھے، اور اتنے عرصے سے وہ بیچارے بھی غمگین تھے کہ میری والدہ اس کوما جو صدمے میں کوما میں چلی گئی تھی، تو شاید اس سے واپس لوٹ آئیں کہ مجھے اپنے ماں کا پیار مل سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ان حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اچھا بھائی، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو والدہ ہیں آپ کی، یہ کب سے اس کوما میں چلی گئیں اور کب سے انہوں نے مشینیں دیکھی تھی؟ بالکل ہی تندرستی اچھی خاصی، تھوڑا سا تیز بولیں تاکہ جو نا بالکل تندرستی جیسے معمول زندگی میں ہم اپنی چہل پہل، بالکل ہی خوش بہار تھے۔ جب سے یہ کٹنگ کا سایہ، یہ منحوس سایہ ہم پہ مشینوں کا جب سے پڑا ہے نا، یہ تب سے پہلے دن ہمارا جب انہوں نے کہا کہ ہم نا تھوڑا سا راستہ لے رہے ہیں، سین توڑا، ہم نے اس گھر پہ نا لون لیا ہوا تھا، لون کی وجہ سے جس دن سے انہوں نے گھر توڑا نا، میری والدہ اسی دن سے، وہ ہم سے تو چھپاتی رہی، وہ اسی دن سے گری، ان کو ایک کوما کے اندر، وہ ڈپریشن کے اندر چلی گئی۔ وہ دکھ ہم جھیلتے رہے۔ ہم نے اس گھر پہ لون لیا ہوا تھا، ہم نے جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ اس کے علاج پہ لگا دی۔ اینڈ یہ ہوا کہ آج وہ اس کٹنگ کے غم کی وجہ سے آج وہ اس دنیا فانی سے بالکل وہ اپنا تعلق ہی ختم کر گئی، اور یہ بے معنی اور بے ان کے حوالے ہمیں کر کے چلی گئی ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہمارے پیچھے، آج میں اپنی والدہ اور میرے سر سے اس کا سایہ جو اٹھا ہے نا، یہ میں جانتا ہوں، یہ رب جانتا ہے۔ ان کٹنگ والوں کو ذرا احساس نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ان کو ذرا احساس نہیں ہے۔ اور مجھ سے اب اور آگے بولا نہیں۔
नाज़रीन, ये बहुत दुख की बात है। अभी ये इनके बेटे हैं जो इनको संभालते थे, लेकिन अभी मेरे लिए अफसोस का मकाम है कि खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं वास्ते पहले भी दे चुका हूँ कि इन गरीबों को, घरों को बग़ैर मुतबादिल दिए हुए, बग़ैर मुआवजा दिए हुए ना उजाड़ें। अगर आपके अंदर कोई इंसान हमदर्दाना दिल रखने वाला कोई हुक्मरान है तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी कि इन गरीबों के घर बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर प्लाट दिए हुए ऐसे ना उजाड़ें। ये भी अशरफुल मखलूक़ात है, ये भी पाकिस्तानी हैं और अहले मुसलमान हैं और पाकिस्तान के खैर ख्वाह और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं। गरीब ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी हैं और इनका हक बनता है कि अपने मुल्क के अंदर, प्यारे पाकिस्तान के अंदर अपना घर बनाएं। इन्होंने एक छोटा सा घर बनाया था। मैं ये वाज़े बता दूं, इनके मैं लीज़ें भी दिखा दूंगा। ये कब्ज़ागीर नहीं है, ये कब्ज़ा माफिया के लोग नहीं हैं। इन्होंने खरीदे थे, अपने जमा पूंजी पैसा दिया था उन्होंने, और वो पैसा देने के बाद उन्होंने ये खरीद कर उसके बाद ये घर बनाया था। लेकिन आपने उनका नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों, आप किसी और मुल्क के नहीं हैं और ये पाकिस्तान के शहरी हैं और इस पाकिस्तान में इनका घर बनाना हक है, लेकिन उस हक से भी आपने महरूम रखा हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जहान में तो आप जुल्म कर रहे हैं, और क्या अगले जहान में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने वहाँ पे हुक्मरानी की और तुम्हारी ही उम्मत में से उस मखलूक को मैंने घर से बेघर किया और इनके ऊपर मशीनें चढ़ा दी और इनके ऊपर हमने डर के साए और जो बादल है वो छा दिए। लेकिन हुक्मरानों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस जुल्म के साए को हटा दें और इनको घर के बदले से घर दें, ताकि इस तरह की हमारी माएँ, इस तरह की हमारी बहनें, इस तरह हमारे बुज़ुर्ग वो और इस जहान फानी से ना जाएं। जाना हर किसी ने है, लेकिन ये जुल्म और जुल्म की इंतहा, लेकिन आप इससे अभी बस कर दें, आप बस कर दें, आपके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन मैं अभी और कोशिश करता हूँ कि उनके जो वर्षा में से अगर कोई हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाभी आपको बता दें कि किस तरह का ये जुल्म उनके ऊपर टूट पड़ा है। इनके पहाड़ जो गम के हैं वो टूट पड़े हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारा साया होते हैं। वो जब आपके जुल्म से वो साए हमसे छूटने लगें तो आप सोचें कि आप कितने हमदर्द हुक्मरान हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, मैं अगेन गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके बारे में सोचें, इनके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि आप ये जुल्म कर रहे हैं। ये यजीद का फ़ेल था, आप हुसैनी बने, आप हुसैन मजलूम थे और आप यजीदी ना बने। ये यजीद के फ़ेल हैं कि किसी गरीब के ऊपर चढ़ दौड़ना, उसके ऊपर जुल्म करना, उसके ऊपर अदालत के दरवाजे बंद करना। मैं ये बात बताने में बिल्कुल बचा हूँ कि आपने ये 100% जुल्म किया है और ये यजीद का अमल है, हुसैन का अमल नहीं है। हुसैन मजलूम था, ये लोग मजलूम हैं। आपको अगर कैमरा दिखाने के लिए ये कितने अफसरदा हैं, और ये मैं उनके दूसरे बेटे हैं, मैं अभी उनसे बात करवा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ उनके अपनी ज़ुबानी सुनिए। भाई अभी ये बताएं कि आप कितने अरसे से वालदा को अपने कोमे से निकालने की कोशिश करते रहे? 2 साल से हम अपनी वालदा का इलाज करवाते रहे। 3 दिन से इन लोगों ने हमें टाइम दिया घर खाली कर दें। 3 दिनों से बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो गई। वो अपना अटैक की तरफ गई, बेहतरी की तरफ नहीं गई। तो 3 दिन का टाइम सुन के उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ती गई। हम इधर उधर बात कुछ हमारे को संभाला ना। तो नाज़रीन, ये उनके दूसरे बेटे हैं और बड़े बेटे हैं। ये भी मैंने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाया, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है आपके लिए कि मैं आपको सुना सकूं, क्योंकि मैं खुद गमगीन हो रहा हूं। ये इतना जुल्म, और मैंने अपनी आँखों से
मैंने अपनी आँखें से गुजरा नाले के ऊपर 0 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक मैंने अपनी आँखों से सैकड़ों अमवात देखी हैं और एक सुसाइड केस भी देखा मैंने। लेकिन शायद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। आपने मीडिया के चैनल तो दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचती ज़रूर होंगी। लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कि और कितने हम मार लें। तो देखें अल्लाह के यहाँ पकड़ ज़रूर है। इस जहान में आपने हिसाब नहीं दिया तो अगले जहान में अल्लाह ताला आपसे ज़रूर हिसाब लेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है तो हमारे माँओं, हमारे बहनों और हमारे बेटों के साए इस तरह ना छीनें कि आप जुल्म करते हुए इन्होंने जो घर साया बनाया था उनको भी आप छीन रहे हैं। और ये कौन सा दुनिया का कानून है? दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में अगर किसी प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, अगर कोई शहर में अच्छे कोई एनवायरनमेंट बनानी होती है तो उसके लिए उनको मुतबादल दिया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। मैं प्यारे पाकिस्तान के दूसरे शहर लाहौर का वाक़या बता दूं। शहबाज शरीफ ने वो ट्रेन वहाँ पे अपना मेट्रो बस चलानी थी तो उनको डबल मुआवजा दिया, उनके घरों को मुआवजे दिए गए उसको ताकि वो बाइज़्ज़त अपनी ज़िंदगी गुजार सके और बाइज़्ज़त अपने किस दूसरे घर में शिफ्ट हो सके। आप अभी देखें सूबा सिंध के अंदर आपकी कैसी तर्ज़ हुक्मरानी है कि आपके पास ज़मीनें भी हैं, आपके पास दौलत भी है, लेकिन आप इन गरीबों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरे भाई ये यहाँ पे रह जाएगा, ये दुनिया, ये पैसा, ये ज़मीनें यहाँ पे रह जाएंगी। लेकिन आप ऐसा जुल्म तो ना करें कि हमें हमारे जो बुज़ुर्गों को साया है वो भी आप छीन लें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो जितने गरीब गुरबा हैं उनके हक़ के लिए ज़रूर सोचेंगे। और आपको याद कराता चलूँ, जिसने नहीं सोचा है तो वो इबरत का निशान बन गया है, वो ज़ालिम कहलाता है। और वो जुल्म, ये मुहर्रम का महीना है और वो जुल्म यजीद का था। ये आप मुसलमान बने, यजीद भी अपने आप को मुसलमान कहलाता था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका जुल्म उसका आज गाली बन गया है। यजीद एक गाली बन गई है, तो उसको याद रखें, वो जुल्म याद रखें कि जिसने भी मजलूम के साथ जुल्म किया वो एक गाली बन गया है। तो आप बराए मेहरबानी इतने जुल्म से इज्तनाब करें और इससे दूर हो जाएं और इनको घर के बदले कम से कम घर दे दें ताकि दूसरी हमारी माएँ इस तरह हमसे ना बिछड़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद।